Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, students. I welcome you. My name is Sir Wajid and I welcome you to GSS Chemistry Department. I am going to present a lecture to you which is taken from class 10th chemistry, chapter number 11. And the title of the chapter is Organic Chemistry. The topic taken from chapter number 11 is the representation of organic compounds. In the previous lectures, we have discussed about organic compounds, that what are organic compounds, and we have studied that organic compounds are either hydrocarbons or their derivatives. And in the second lecture, we have discussed the general characteristics of organic compounds. In today's lecture, we will learn that how these organic compounds are represented. हम इन organic compounds को कैसे represent करते हैं. Organic compound की representation के लिए हम मुख्तलिफ फार्मूलाई यूज़ करते हैं. The first formula which is used to represent an organic compound is the molecular formula. The second formula which is used is the structural formula. The third formula which is used is the condensed structural formula. And the fourth type of representation is the dot and cross formula. यानी अगर हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन. दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज करते हैं. सॉरी, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4. इन क्लास 9 you have studied that molecular formula represents the actual whole number ratio of atoms of elements present in a molecule of that compound. So मीथेन का molecular formula CH4 है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? CH4 कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम्स. कार्बन के एक सेंट्रल एटम के साथ हाइड्रोजन के 4 एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं 4 to make a molecule of methane. So structural formula is that formula which shows the arrangement of atoms in the molecule of a compound. अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम की अरेंजमेंट है. कार्बन being the central atom and hydrogen they surround carbon atom. 4 hydrogen atom they share their electron with the 4 valence electron of carbon atom to complete its octet. तो फर्स्ट हमने कार्बन मीथेन को रिप्रेजेंट किया इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 से. देन हमने यूज़ किया स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम के बॉन्डिंग की अरेंजमेंट हमने शो की. सेकंड, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला. अगर इस स्ट्रक्चरल फार्मूला को कंडेंस करके CH4 के फॉर्म में आप लिख दें, दैट इज द कंडेंस फॉर्म, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका और कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला मीथेन का सेम है. फिर डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर. डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में मीथेन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CH4, जिसमें कार्बन के सिंगल एटम के साथ हाइड्रोजन के 4 एटम बॉन्ड बना रहे हैं. तो हम डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करेंगे और 4 डॉट्स 4 साइड पे कार्बन एटम के साथ हम बनाएंगे. हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करेंगे और इसके साथ हाइड्रोजन का एक एटम हम रिप्रेजेंट करेंगे. दूसरा, यहाँ हाइड्रोजन टू रिप्रेजेंट अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम. तो ये है डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर. सो ये 4 बेसिक टूल्स हैं which we use to represent organic compounds. In today's lecture, we will discuss about molecular formula, the structural formula, condensed structural formula, dot and cross formula. Molecular formula. It is that formula which represents the actual number of atoms present in one molecule of organic compound. It's called molecular formula. अभी मैंने बेटा आपको एक्सप्लेन किया कि ये हमें क्या बताता है? Actual number of atoms in one molecule of organic compound.
फॉर एग्जाम्पल एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन एक कंपाउंड है C4H10, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. ब्यूटेन इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम. ईच मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एटम एंड 10 हाइड्रोजन एटम, जो कि इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें ये नजर आ रहा है. C4H10 मीन देयर आर 4 कार्बन एटम एंड 10 हाइड्रोजन एटम. नाउ इस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें हमने ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम और 10 हाइड्रोजन एटम को शो करना है, फिर इसकी 2 पॉसिबिलिटी होगी. या तो आइदर 4 कार्बन एटम दे मेक स्ट्रेट चेन, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, तो स्ट्रेट चेन ब्यूटेन को एन ब्यूटेन कहते हैं. एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब है स्ट्रेट, यानी इसमें कार्बन के एटम 4 एटम स्ट्रेट चेन बनाते हैं. ये ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन. सेकंड राइट साइड पे अगर हम देख लें तो ये स्ट्रेट चेन के साथ यहां कार्बन एटम एक ब्रांच बना रहा है, तो ये 4 कार्बन एटम ब्रांच के फॉर्म में अरेंज हैं. इस ब्रांच की वजह से इट इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन. आइसो मीन ब्रांच्ड. तो ये दोनों फार्मूलाए दे आर द स्ट्रक्चरल फार्मूलाए ऑफ ब्यूटेन, और ये ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हैं. दे हैव गॉट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10. दोनों का फार्मूला C4H10 है, लेकिन देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट. इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है. इनको हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स. नेक्स्ट है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला. अब इनको कंडेंस कर दें, यानी CH3 है इस मीथेन में, यहां CH3 इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के पार्ट में है CH3. इसको कंडेंस करके CH3 हम लिख दें. फिर इसके बाद CH2, तो CH2, फिर CH2, CH2, फिर आ गया CH3. ये हमने कंडेंस फॉर्म कंडेंस कर दिया. तो दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन. आइसोब्यूटेन का कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला आइसोब्यूटेन का, जिसमें हमने आइसोब्यूटेन में स्ट्रेट चेन को यहां शो किया, CH3 CH एंड CH3 कंडेंस करके रख दिया, और CH3 इस ब्रांच को कंडेंस करके CH3 के फॉर्म में. सो दिस फार्मूला इज द कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला. द फोर्थ फार्मूला इज द इलेक्ट्रॉन एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला. The formula which shows the sharing of electron between various atom in one molecule of organic compound is called dot and cross formula. इस फार्मूले में चूंकि एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करते हैं और दूसरा एटम जो उसके साथ बॉन्ड बना रहा है उसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, और इसमें वही डॉट एंड क्रॉसेस शो करके कोवेलेंट बॉन्डिंग को हम शो करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला. फॉर एग्जाम्पल ये एक कंपाउंड है प्रोपेन, इसका ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है. हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉसेस से, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से. और जब हम कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट्स एंड क्रॉसेस से शो करते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को जो कार्बन के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो रहा है और एक शेयर्ड पेयर बन रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर हम शो करते हैं दैट इज कॉल्ड द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर. इस तरह किसी भी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर. अब इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा. डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस फार्मूला विद एग्जांपल. 3 मार्क्स के लिए. व्हाट डू यू नो अबाउट डॉट एंड क्रॉस फार्मूला? गिव एग्जांपल. Draw condensed structural and electronic formulae of hexane. Electronic formulae mean dot and cross structure. Draw condensed structure and electron formulae of butane and pentane. ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा बेटा. तो ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन प्रोफाइल है. इसका लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का, हाउ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड. तो here we conclude today's lecture. I hope you understood it. Thank you.